मैं साइटेशन पढ़ने के लिए बुला रहा हूँ, आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर एस के यादव सर को। और वो साइटेशन जिनके बारे में पढ़ा जा रहा है, कहते हैं ना कि टेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। हम जीवन के किस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, ये मायने नहीं रखता है। किसी भी दिशा में बढ़ जाए क्षेत्र, अगर टेस्ट कहीं और होता है ना, तो वो ज़रूर आपको खींच कर ले जाता है अलग। और एक इंजीनियर से एक आवाज़ के बादशाह के सफ़र तक की कहानी वो आपके सामने रखेंगे डॉक्टर एस के यादव सर, श्री हरीश भिमानी सर के बारे में। थैंक यू। Very good afternoon, you all. Respected Chancellor Sir, invited dignitaries on the dais, members of Governing Body and Management Committee, my dear research scholars, students, ladies and gentlemen. It's my proud privilege to read the citation of the great personality, Shri Harish Bhimani ji, narrator, anchor and writer. Shri Harish Bhimani, tracing his ancestry to Jaisalmer district, Rajasthan, henceforth Kutch, was born on 15 February 1946 in Mumbai. He graduated from Lakshmi Narayan Institute of Technology, Nagpur, and earned his MBA from Jamnalal Bajaj Institute of Management Studies, Mumbai. After initial years with leading global multinational company, he turned his passion into the talent, his profession, voice recording, anchoring and writing. Gifted with a meritorious mellifluous voice, doors of radio, TV उम्मीद कर रहे हैं सारे कार्यक्रम जो recording स्कॉलर open a पहली बार wide इस तरह के फंक्शन में शरीक हो रहे हैं, influence उनके लिए to बहुत him. बेहतरीन He लम्हा है। soon carved the nest for himself in the world of media and entertainment by his innovative work in multiple genres of the voice industry. Harish Bhimani ji is well known TV news scaler and news setter, radio broadcaster, stage anchor, writer, documenter, but above all, a voice that alerts, illustrates, inspires the millions, commanding 26,000 recordings and counting so far. He is accepted as having contributed significantly towards elevating an under-recognized field of narration as a voice-over recorder and artist to the thriving recording and dubbing industry, variably or varietably from the jungle foot track to the expressway with endless possibilities so far. In his focused pursuit over the years, he embraced new genres with LST. His pioneering work at every turn of technology heralded glad tidings for sunrise the voice industry. In the process, providing to the world that narration, post rendition is also an art exemplified by the memorable narration of Samay of the Mahabharata, a noted TV serial of P.R. Chopra. The iconic voice role that shone over the ensemble cast and created
an unprecedented landmark in the serial. He is credited with several groundbreaking records, like India's #1 audiobook for the US media, Nobel laureate Hermann Hesse Nobel Siddharth, a German filmmaker's experimental documentary in Sanskrit, Devastar, The Voice of God, light and sound, laser, and new 3D projections mapping shows at historical monuments across India. The world's tallest statue of unity of Konark Sun Temple and Shahid Bhagat Singh to Kirti Mandir, Mahatma Gandhi's residence. The Jaisalmer Fort to Rajasthan Vidhan Sabha, Digital Museum to Dinosaurs Museum, and numerous in between audio dictionaries, TV serials, and introductions of them, recepts promotes to begin with them. His anchoring of music concerts around the world include Hollywood portals like Madison Square Garden, Royal Albert Hall, Sydney Open House and Shrine Auditorium. For Lata Mangeshkar, he has anchored 143 events in 20 countries. He has narrated entire Bhagavad Gita in 4 languages. In the field of writing, he is credited with popular TV serials such as Khandan, Subah, Inkar, Sukanya, Grahan, etc. And has also authored Lata Mangeshkar's biography entitled In Search of Lata Mangeshkar, and the Hindi translation Ajeeb Dastan Hai Ye. He also wrote and narrated film The Guru of Celluloid in 2008 for Guru Dutt Films Private Limited. He has narrated most of Sachin Shankar's ballads. The applications of engineering to media, he introduced teleprompters to India, which is a boon today, which today have become the norm in TV and stage anchoring. And using web technologies to the voice world, he credited a unique voice website, radiosutra.com, for the entire voice-over community that today provides recorded audio consent or contents to clients in 38 countries. A recipient of coveted President's Medal in National Film Awards 2016 for voice-over narration. Media have variously described Mr. Harish Bhimani as one of the most recognizable voice of India, the most traveled Indian anchor, and a writer with a sin. He is the only anchor to have received gold disc with the HMV, nowadays Saregama. He is the recipient of prestigious Asian Voice UK Award 2013, presented at the House of Commons, London. He has served on national and international film festival juries and awards. Mr. Harish Bhimani stands along with his chosen field of the work. Today, even the country's recordings at his own terms and conditions. He is idolized with veterans and green-ons like. Today,
He is considered a hard to attain benchmark in an industry so different from his formal education in the engineering and management forum. We salute the pioneering spirit of Sri Harish Bhimani ji and pray to Almighty that he may continue to inspire the future generation lifelong. Recognizing his exemplary dedication, professional leadership in the little known area of voice art, Shri Jagdish Prasad Jhaparmal Tibrewala University feels proud to honor and award Doctor of Letters degree under Honoris Causa to Shri Harish Bhimani ji at the 10th annual convocation held on 6 March 2022 at the University campus, Junjunu, Rajasthan, in presence of management and university fraternity, along with invited guests and students and scholars of the university. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, डॉक्टर एस.के. यादव सर जी। हमारे मेहमान श्री हरीश भीमानी जी, उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपने सुने, इनकी लंबी जीवन यात्रा की, किस किस तरीके से अपने आवाज़ के बल पर ये दुनिया में अपने नाम को रोशन कर सके, सिर्फ अपना नहीं बल्कि भारत का भी। ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात महसूस होती है इनफैक्ट, और वो आज हमारे बीच में शामिल हैं, उपस्थित हैं। तो मैं अब हमारे शिक्षाविद चेयरपर्सन डॉक्टर विनोद टिबड़ादे जी से आग्रह करता हूं कि कृपया वो आगे आए और हरीश भीमानी सर को डेलिट की डिग्री प्रदान करें। आप लोगों से इस बार आग्रह है, काफी जोर से आपकी तालियों की गूंज सुनाई देनी चाहिए हमारे माननीय अतिथि श्री हरीश भीमानी जी को डॉक्टर विनोद टिबड़ेवाला सर के द्वारा डेलिट की उपाधि प्रदान करने का एक बहुत अच्छा लगा। श्री हरीश भीमानी जी को डेलिट की उपाधि देते हुए डॉक्टर विनोद टिबड़ेवाला सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम हमारे माननीय अतिथि आईजी पुलिस जयपुर श्री सुरेंद्र गुप्ता, जिन्हें राजस्थान के अनेक क्षेत्रों में अपनी उत्कृष्ट पुलिस सेवा के लिए 2010 में रेसिडेंट्स पुलिस मेडल, सन 2018 में अति उत्कृष्ट सेवा मेडल और 2021 में डिजिटल डेस्क मेडल से नवाजा गया और पुलिस डिपार्टमेंट को त्वरित और स्मार्ट बनाने के विभिन्न सफलतम प्रयोगों के लिए राजस्थान सरकार की ओर से इनको प्रशंसा पत्र बहुत सारे मिले। मैं माननीय श्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता जी से आग्रह करता हूं कि कृपया वो मंच पर आए और अपने कुछ विचार साझा करें। हमारे माननीय अतिथि सर कृपया यहाँ पे आए। आज के इस
दीक्षांत समारोह 2022 के समारोह के अध्यक्ष श्री विनोद जी टिबरेवाला साहब, मुख्य अतिथि श्री हरीश जी भिमानी साहब, जिनकी आवाज़ के हम सब लोग कायल हैं, मंच पर पदासीन श्री नरेंद्र कुमार जी खीचर साहब, एमपी साहब नरेंद्र सिंह जी, डीआईजी सीआरपीएफ, एसपी साहब प्रदीप जी, जिला प्रमुख जी और सिहाग साहब निर्माण विश्वविद्यालय चेयरमैन, बालकृष्ण जी टिबरेवाला साहब रजिस्ट्रार साहब, आज के समारोह में दीक्षा ग्रहण कर रहे सभी रिसर्च स्कॉलर्स, फैकल्टी मेंबर्स, पधारे हुए सभी गणमान्य सम्मानजनक अतिथिगण, सभी भाइयों और बहनों, आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं कुछ विलंब से आने के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ और कुछ समय ऐसा है कि समय पर पूरा वश नहीं है, जैसा हरीश भिमानी साहब अपने उसमें कहा करते हैं कि मैं समय हूँ, तो समय एक ऐसी चीज़ है जिस पर सबका वश नहीं रहता। आज आप लोग दीक्षा ग्रहण करके और इस विश्वविद्यालय से बाहर समाज में, सोसाइटी में, कार्यक्षेत्र में कुछ अपना योगदान देने जा रहे हैं। एक विचार मेरे दिमाग में कौंधा है कि इस समारोह को दीक्षांत समारोह क्यों कहा जाता है, शिक्षांत समारोह क्यों नहीं? क्योंकि शिक्षा का कभी अंत नहीं हो सकता। शिक्षा अनंत है, ज्ञान अनंत है। केवल यहाँ की जो फॉर्मल आपकी पढ़ाई है, इस दीक्षा का आज समापन हो सकता है। शिक्षा आप जीवन भर कुछ ना कुछ समाज से भी, जिनसे भी आपका संपर्क होता है, व्यवहार होता है, आप अंत समय तक ग्रहण करते रहते हैं। एक बहुत बड़े महापुरुष का कथन है कि अगर हमारी उम्र 5 लाख वर्ष भी हो और हम नित्य 12 घंटे रोज ज्ञान का अर्जन करें, तो भी इन 5 लाख वर्षों के उपरांत भी हम महासागर के कोई एक चुल्लू भर पानी को भी समेट नहीं सकते। इतना ज्ञान अनंत है, ब्रह्मांड अनंत है। आप सब जानते हैं कोई ब्रह्मांड की सीमा नहीं है। ब्रह्मांड निरंतर प्रसार कर रहा है, कहाँ खत्म होगा कोई लिमिट नहीं। तभी ज्ञान के लिए कहा जाता है, शिक्षा के लिए कहा जाता है स्काई इज द लिमिट। सिर्फ मुहावरे के रूप में, क्योंकि सब जानते हैं स्काई की कोई लिमिट नहीं। मैं इस अवसर पर आपको अपनी व्यक्तिगत 2-3 बातें जरूर कहना चाहूँगा। जो लोग शिक्षा प्राप्त करके दीक्षा लेकर यहाँ से बाहर समाज में, कार्य क्षेत्र में अपना कार्यभार करेंगे, समाज के जिस भी क्षेत्र में, कि अपने संस्कारों को जरूर आप जीवन में स्थान दें। शिक्षा में जो कमी समाज में दिखाई देती है, शिक्षा हम बहुत बड़ी बड़ी ग्रहण कर रहे हैं, डिग्रीज ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन संस्कारों को हम भूल रहे हैं। मेरा आप सब लोगों से आग्रह है कि संस्कारों को जीवन में पहला स्थान रखें।
संस्कार विहीन शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। दूसरी बात, अपनी जो सोच है, सकारात्मक सोच है, जीवन के प्रति, इस समाज के प्रति, दुनिया के प्रति रखें, संगत अच्छी रखें, सहयोग की कामना रखें, समाज में सम्मान की भावना रखें, क्योंकि यही सब एक दिन लौट करके आना है। जो आप समाज को देते हैं, जो आप किसी दूसरे को देते हैं, वो पलट कर जरूर आपको एक दिन लौट कर आपको जरूर मिलता है। इन्हीं कुछ संक्षेप से शब्दों के साथ मैं आपको थैंक यू। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने शिक्षा और संस्कृति संस्कारों की बात के तालमेल की बात जो कही वो बहुत उपयोगी था। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सांसद श्री नरेंद्र किचक से विनम्र निवेदन है कि कृपया डाइस पर आए। धन्यवाद सर। आज के इस 10वां दीक्षांत समारोह में और मुख्य अतिथि के रूप में पधारे आदरणीय हरीश जी भिमानी जी, जिनको डी.लिट की आज मानद उपाधि प्रदान करेंगे। इसके लिए मैं डॉक्टर विनोद कुमार टिबड़ेवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं भिमानी जी को कि आज डिग्री प्राप्त करेंगे। और हमारे पधारे जो हमारे एसपी साहब यहाँ रह चुके हैं, जो आपको कितने मान सम्मान सरकार द्वारा मिले हैं, इसके लिए मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। हमारे ज़िले में एसपी थे और आईजी बन करके यहाँ पधारे हैं, इसके लिए मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय नरेंद्र कुमार सिंह जी जो दिल्ली से पधारे हैं, मेरे नाम राशि है। कभी कभी मेरे को पूछते हैं, फोन आता है ना जब नेताओं करे से पूछते रहते हैं स्वास्थ्य कैसा है, तो मैं उनको क्या कहता हूँ, वो नरेंद्र नाम के आदमी का स्वास्थ्य पूछने की जरूरत नहीं है, उनका स्वास्थ्य पहले से दिख रहा, देख लो। तो आदरणीय नरेंद्र जी, प्रदीप मोहन जी शर्मा जी और हमारे साथ पधारे भारत, ये उनके साथी हैं वैसे तो टिबड़ेवाल जी के सभी, उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ कि बाहर से ये पधारे हैं, मुंबई से, उनका भी स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। और हमारे सभी झुंझुनू जिले के नागरिक बंधु, शिक्षाविद और आज जो यूनिवर्सिटी से डिग्री लेंगे, जो अपनी डिग्री लेकर के जाएंगे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। यहाँ स्टाफ के सभी यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टाफ के सदस्यगण हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं टिबड़ेवाल परिवार का आभारी हूँ और उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। पहले भी बता चुका कि जंगल में मंगल मंडावा में ये जेजेटी यूनिवर्सिटी खोली, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। और आगे से आगे उनका सोच, ये उम्र होने के बाद में दिन रात यूनिवर्सिटी की चिंताएं, वहाँ से फ़ोन भी करते रहते हैं सबको कि आगे और कैसे बढ़ाया जाए और कौन सी उपाधि की डिग्री की उपाधि खोले जाए, कौन सी ब्रांच और खोली जाए, लगे ही रहते हैं। तो इनको जो भी आगे लेंगे, पहले भी मैं इनके साथ ही हूँ पहले से भी, और अब भी जो भी सरकार द्वारा या जहाँ भी हमारा उपयोग हो वो लें, इसको निश्चित रूप से आगे बढ़ाएं। आदरणीय मोदी जी का जो सपना है देश को आत्मनिर्भर बनाने का, उसमें आपका सहयोग बहुत हो रहा है और आगे होना भी चाहिए कि रोजगार देने वाले बने, रोजगार लेने वाले नहीं बने। तो आप यहाँ इस जंगल में मंगल करके रोजगार भी दे रहे साथ में। और भारत के कितने राज्यों से ये विद्यार्थी डिग्री लेकर के जाते हैं, जहाँ भी हम दूसरे स्टेट में जाते हैं तो कहते हैं झुंझुनू यार वहाँ एक जेजेटी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से हमें भी वो डिग्री दिलाओ, हमारे वो विद्यार्थी लेकर के आए हैं। मतलब इस तरह की चर्चा चलती ही रहती है। तो जब अच्छा काम करता है तो उसकी चर्चा चलती रहती है। तो टिबड़ेवाल परिवार आगे भी बढ़े रही, यूनिवर्सिटी भी आगे बढ़ती रहे। अभी विद्यार्थियों के मैं उज्ज्वल भविष्य की कामना भी करता हूँ। अभी हमारे गुप्ता साहब ने जो आईजी हैं, इन्होंने जो बात बताई, इसका ज़रूर आप ध्यान रखें, क्योंकि आपको जो मिली है उसका मान सम्मान बनाए रखें। और आप सभी का स्वागत भी करता हूँ, साथ में डिग्री लेते हो उसके लिए धन्यवाद भी देता हूँ और सभी के विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना भी करता हूँ। और आनंद
और त्रिबड़ेवाल जी पूरे ही परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे मंडावा विधानसभा क्षेत्र में JJ यूनिवर्सिटी खोली, इसके लिए धन्यवाद की पात्र तो हुई। और साथ में मैंने बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ देखी है जिसमें जब जाकर के घुसते हैं ना तो ऐसे लगे कि सारे छोड़ के चले गए क्या यूनिवर्सिटी को। यहाँ मतलब चार चांद जैसे जिस तरह से लगाए जाते हैं यूनिवर्सिटी को लगे रहते हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि कोरोना संकट में खत्म हो गया तो विश्व से कोरोना संकट भी शीघ्र खत्म हो। जय हिंद, जय भारत। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्री JJT विश्वविद्यालय के बारे में अपने इतने अच्छे ख्यालात बयां करने के लिए और शिक्षा के बारे में बहुत सारी बात करने के लिए बहुत बहुत फिर से आपका धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगा अपने सम्मानित अतिथि श्री नरेंद्र कुमार सिंह जी को, जिन्हें पुलिस सेवा के दौरान 2013 में राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक मिला। जब ये युगोस्लाविया में पदस्थापित थे वहाँ विशिष्ट सेवा के लिए इन्हें UN मेडल प्रदान किया गया। नॉर्थ ईस्ट के दरमियान इन्हें विभिन्न सेवा के लिए विशेष पुलिस सेवा मेडल प्रदान किया गया। नॉर्थ ईस्ट में से इनका काम बहुत ही अच्छा रहा था। बहुत सारे स्टेट में उधर इन्होंने जो अपने काम किए उसके लिए बहुत सारे इनको मेडल मिले और अभी फ़िलहाल ये दिल्ली में पोस्टेड हैं, CRPF में DIG के पोस्ट में। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर आएं और अपने कुछ विचार साझा करें। श्री नरेंद्र कुमार सिंह जी। यहाँ उपस्थित रिस्पेक्टेड IGP महोदय, श्री प्रदीप मोहन, डॉक्टर विनोद त्रिबड़ेवाला जी, बालकृष्ण जी और JJTU के सभी प्रोफेसर्स, विद्यार्थी और उनके पेरेंट्स, सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, मुझे यहाँ उपस्थित होने का मौका दिया और बहुत सारा सम्मान दिया, इसके लिए धन्यवाद। विद्यार्थियों के लिए मैं ये कहूँगा कि IGP सर सुरेंद्र गुप्ता सर ने जो बताए हैं और जो सांसद जी बोल के गए हैं कि एक तो लोभ नहीं कभी भी अपने मन में आने देना है और अपने आदर्शों से नीचे नहीं होने देना है। साथ में मैं ये और ऐड करूँगा कि ज्ञान के लिए कोई लिमिट नहीं है, स्काई इज़ द लिमिट। तो ज्ञान प्राप्त करते रहिए। ज्ञान प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती है, चाहे किसी भी उम्र में आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ मैं ये अवश्य कहूँगा कि आप लोग अपनी भावनाओं को देश के प्रति अवश्य रुझान रखिए, समर्पित रखिए और फीलिंग्स रखिए। यदि आप ऐसा रखेंगे तो मुझे यकीन है कि कभी गलत कार्य कर ही नहीं पाएंगे। देश के प्रति यदि समर्पित रहेंगे तो आपको कोई भी गलत कार्य करने का मौका आपके मन में आएगा ही नहीं, क्योंकि आप किसी न किसी रूप में देश की सेवा कर रहे होते हैं, चाहे सर्विस में हो, सेवा में हो या व्यवसाय में हो या किसी कार्य में हो। आप जनता की सेवा कर रहे होते हैं और जहाँ जनता की सेवा हो रही होती है वहाँ पर कभी हमारे मन में गलत ख्याल नहीं आना चाहिए। तो इसको बरकरार रखें और मैं आपकी उपाधि के लिए फिर आपको बधाई देता हूँ और आपके परिवारजनों को भी धन्यवाद देता हूँ। आपने ये अर्जन किया है बड़ी मेहनत से, इसको संभाल के रखिए और इसका सदुपयोग कीजिए और देश में जाकर सेवा कीजिए। साथ में मैं एक ये जोड़ना चाहूँगा कि हमारे देश का एक हिस्सा है नॉर्थ ईस्ट, जिसमें मैं सर्विस के दौरान काफ़ी समय रहा हूँ। वो हिस्सा ऐसा है जहाँ के लोग काफ़ी अपने आप को डाउनग्रेडेड समझते हैं। उनको लगता है कि जो देश का मुख्य भाग है वो हमें इज्जत नहीं करता है, हमारा सम्मान नहीं करता है। तो कृपया जब भी आप सभी को कोई भी मौका मिलता है नॉर्थ ईस्ट में, असम, नागालैंड, मणिपुर साइड में अवश्य जाइए और वहाँ के लोगों की समस्याओं को देखिए, उनका अध्ययन कीजिए और उनके बारे में, उनका सुधार करने के बारे में प्रयास कीजिए। धन्यवाद। जय।
सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लोग कहते हैं ना कि आप हैं तो हम हैं, इतनी सुरक्षा की भावना हम लोगों के अंदर सिर्फ आप लोगों की वजह से ही होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आप लोग भी थोड़ा सा उत्सुक हो रहे होंगे, उस आवाज़ को सुनने के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे जिसकी कशिश हर दिल में बसती है। एक वैसी गंभीर आवाज़ जो कहीं ना कहीं हर घर में बस जाती है, दिल में बसती है, घर करती है। उस आवाज़ को सुनने और उनके विचार जानने के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं हमारे मेहमान श्री हरीश विमानी सर का। सर कृपया आए। थोड़ी देर के लिए बस ये फैन ऑफ किया जा रहा है, क्योंकि फैन की आवाज़ जो शोर होती है ना, उसमें जो आवाज़ हम लोग सुनना चाह रहे हैं उस क्लैरिटी के साथ सुन पाए, इसलिए थोड़े वक्त के लिए ये फैन सारे ऑफ होंगे, उसके बाद फिर चालू हो जाएगा। धन्यवाद। मैं डॉक्टर समय